Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahojala Academy. And in this video, I'm going to summarize the whole of Limitation Act in under 10 minutes. Let's start. So the Limitation Act is based upon three things. It is an act of 1963 and is based upon three things. The first one is a maxim which is known as Interest Republicae Ut sit finis litium, right? Interest Republicae ut sit finis litium. This means it is in the interest of the republic that there is an end to litigation. Okay? So this maxim actually has two facets. First is the relationship between the government and the citizen. So first, the government makes the laws by the parliament, and then what it does, it sues the citizens itself, right? याद रखना कि यहाँ पर taxpayer का money involved है, and the government what it does, instead of working for the welfare of its citizens, it is busy in suing its citizens. जैसे कि National Litigation Policy of 2010 ने जो observation दी थी, one of the main observations was that government is the biggest litigant. ठीक है? So the first aspect is the government should be involved in less and less litigation. First, ये तो था government और citizen के बीच में. Among the citizens themselves क्या होगा? If one citizen has a cause of action, he has to file the suit or appeal or application within the time period prescribed. क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, the other person जिसके ऊपर suit file होना था, that person is going to feel apprehensive. उसे वो हर वक्त इस बात को लेकर के डरा रहेगा कि कब मेरे पर suit file हो जाए. तो इस चीज को हटाने के लिए, जो मन में डर है, जो apprehension है, इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिटीजन के बीच में एक सर्टेनिटी लानी है लीगल रिलेशनशिप को लेकर के. और वो हम लोग कैसे ला सकते हैं? बाय गिविंग अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम कि इसके अंदर ही आपको सूट फाइल कर देना है. ठीक है? सो जो मैक्सिम है इंटरेस्ट रिपब्लिक के ut sit finis litium, इट हैज एक्चुअली टू डायमेंशंस. तो आपको दोनों डायमेंशन याद रखने हैं. नाउ द सेकंड मैक्सिम इज, ये तो फर्स्ट मैक्सिम है, द सेकंड मैक्सिम इज विजिलेंटिबस डोरमेंटिबस jura non subvenient. Jura non subvenient. So this maxim has a lot of application. It basically says the law is going to assist those who are vigilant about their rights and not to those who sleep over it. ठीक है? अगर किसी पर्सन का राइट वायलेट हुआ है and that person is affected by that right, the law expects कि he is going to file the suit appeal or application as soon as possible, right? बट अगर वो पर्सन 20 साल का टाइम ले ले या 15 साल का टाइम ले ले टू फाइल द सूट, वहां पर प्रिजम्पशन क्या रेज हो जाएगी कि उस राइट के वायलेशन का उस पर्सन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. इसीलिए लॉ एक्सपेक्ट्स कि अगर आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन है तो आप जल्दी से जल्दी एक लीगल एक्शन इनिशिएट करोगे. ठीक है? और इसीलिए लॉ एक्सपेक्ट करता है कि आप जब जल्दी अपने राइट को एक्सरसाइज करोगे तो वो लॉ भी उन्हीं को हेल्प करेगा जो कि जल्दी अपने राइट को इनिशिएट करना चाहते हैं. ठीक है? एक्सरसाइज करना चाहते हैं. एंड द थर्ड वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस और आल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिले. ठीक है? देखो, इफ देयर इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डिले, व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट? द इफेक्ट इज गोइंग टू बी दैट द एविडेंसेस मे बी लॉस्ट. जो डॉक्यूमेंट्स है, दे मे बी लॉस्ट और दे मे बी डिस्ट्रॉयड. और ये बात तो डॉक्यूमेंट्स की है. अगर बात विटनेसेस की जाए तो अगर 15 साल पहले जो चीज हुई थी वो चीज आज विटनेसेस को याद नहीं होगी, बिकॉज मेमोरीज कैन फेड, राइट? सो whenever there is a delay or the doctrine of latches, it says कि when there is a delay, the effect is going to be that the document is going to be lost or destroyed or the witnesses may lose their memory. और यहां पर यह भी हो सकता है कि जब एविडेंसेस लॉस्ट हो तो there is a chance for evidences being fabricated also. ठीक है? So याद रखना कि this is the reason for the doctrine of delay. So these are the three things upon which the Limitation Act is based. ठीक है? अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं Limitation Act की, तो there is a schedule and the schedule actually talks about कि किस particular instance में हम लोगों को कितना time period मिलेगा. And it broadly is classified into three parts. First is suits, second is appeals, and the third is applications, right? And then याद रखना हम लोग को applications को भी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है. The first is execution applications and the other one is other applications. ठीक है? Other applications, right?
लिमिटेशन एक्ट का कोई भी प्रोविजन हम लोग इसी में पढ़ते हैं, बिकॉज द शेड्यूल ऑल्सो डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, सूट्स के लिए शेड्यूल डिवाइड करता है आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 113 तक। ठीक है, इसमें कि आर्टिकल 113 जो है दिस इज डीम्ड एज द रेजिड्यूरी प्रोविजन, और इसमें याद रखना कि आर्टिकल 113 1 से लेकर 113 में जो जनरल ट्रेंड है इट इज समवेयर बिटवीन 1 ईयर टू 30 ईयर्स। ठीक है, हाँ, इसमें एज अ जनरल रूल आप ये ले सकते हो कि 3 इयर्स का होगा, बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जनरली 12 इयर्स का होता है, बट वहां पर भी कभी कभी 1 ईयर या 3 इयर्स वहां पर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो सूट्स के केसेस में याद रखना कि इयर्स में टाइम दिया हुआ है, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1 ईयर टू 30 इयर्स, कुछ भी हो सकता है। जहां तक बात है अपील्स की, दिस इज अंडर आर्टिकल 114 टू 117। ठीक है, एंड यहां पर जो टाइम दिया हुआ इट इज एनीवेयर बिटवीन 30, 60 एंड 90 डेज। ठीक है, नाउ व्हेन वी कम टू एप्लीकेशंस, याद रखना दिस इज फ्रॉम आर्टिकल 118 टू आर्टिकल 137। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस को सेपरेट कर देते हैं, दिस इज आर्टिकल 136। इवन एप्लीकेशंस में भी, अदर एप्लीकेशंस में भी जो जनरल रूल है वो है 30, 60 एंड 90 का। कहीं कहीं 10 डेज भी दिया हुआ है और कहीं कहीं ईयर्स में भी दिया हुआ है, बट एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन की जब बात करेंगे यहां पर जो टाइम दिया हुआ है दैट इज 12 ईयर्स। ठीक है, तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि शेड्यूल्स को डिवाइड करके कैसे पढ़ना है। तो पहला वाला पार्ट है आर्टिकल्स 1 टू 113 सूट्स के लिए है, अपील्स के लिए आर्टिकल 114 टू 117 है, एंड देन एप्लीकेशंस के लिए आर्टिकल 118 टू 137 है हमारा। ठीक है, और ऐसे ही आर्टिकल 137 भी क्या है, रेजिड्यूरी है, अगर वो कहीं नहीं फॉल कर रहा होगा तो यहां फॉल कर जाएगा फॉर एप्लीकेशन, जैसे सूट्स के लिए 113 है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को याद रखना है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो होता है, व्हाट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन, POL लिख रहा हूं, दिस इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जो भी शेड्यूल के सेकंड कॉलम में टर्म दिया गया है, दैट टाइम दिया गया है, दैट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सो यू डोंट नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि क्या होता है, बस ये याद रखना कि शेड्यूल के सेकंड कॉलम में टाइम पीरियड दिया गया है, दैट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बट द अदर टर्म इज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज, देखो लिमिटेशन एक्ट में सेक्शंस 4 टू 24 में कुछ एक्सेप्शंस और एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस एंड एग्जेम्पशंस। ठीक है, याद रखना कि कई बार लिमिटेशन एक्ट क्या करेगा कि आपको एक एक्सेप्शन दे देगा या फिर एग्जेम्पशन दे देगा इन सर्टेन केसेस, यहां पर कि आप वो टाइम पीरियड जो है अपने लिमिटेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन से एक्सक्लूड करा सकते हो। ठीक है, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद जो हमारे पास टाइम पीरियड आता है उसे हम लोग प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं। याद रखना, पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब पीरियड जो है ये एक ही चीज नहीं होती। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, जो भी शेड्यूल के सेकंड कॉलम में दिया है दैट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है, सेक्शन 4 टू 24 में जो भी एग्जेम्पशंस एंड एक्सेप्शंस दिए हुए हैं उसे कैलकुलेट करने के बाद जो टाइम पीरियड हमें मिलता है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, अब याद रखना कि यहां पर भी सेक्शन 4 टू 24 को हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। एक्चुअली वो 4 टू 24 भी नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 6 टू 24। अब इसे हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, सेक्शन 6 टू 11 एंड देन सेक्शंस 4 टू, सॉरी दिस इज सेक्शन 12 टू 24। ठीक है, दिस इज 12। अब यहां पर याद रखना सेक्शन 6 टू 11 में हम लोग बोलते हैं दीज आर डीम्ड एज एक्सेप्शंस, और सेक्शन 12 टू 24 दीज आर डीम्ड एज एग्जेम्पशंस। ठीक है, so although they are upon similar lines but yet they are different. exceptions में हम लोग ऐसे मानते हैं कि वो टाइम पीरियड कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं था। exemptions में हम लोग ऐसे मानते हैं कि टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था, बीच में कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से टाइम पीरियड स्टॉप हो जाता है, एंड देन वो टाइम पीरियड फिर से वो इंसिडेंट खत्म होने के बाद टाइम पीरियड जो है वो रिज्यूम हो जाता है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग ऐसे डील करेंगे, द टाइम पीरियड नेवर स्टार्टेड, राइट, और यहां पर हम लोग कहेंगे द टाइम पीरियड स्टार्टेड
देयर वाज सम इंसिडेंट और इंटरवेंशन, कोई इंसिडेंट होती है जिसकी वजह से टाइम पीरियड रुक जाता है, एंड देन आफ्टर द इंसिडेंट इज ओवर द टाइम पीरियड रिज्यूम्स। ठीक है, सो लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ बोथ। एक एग्जांपल इसका देखते हैं और एक एग्जांपल इसका देखते हैं। पहले एक्सेप्शंस वाले का देखते हैं। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट लीगल डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर मान लो कि ए is of 15 years of age, so what legal disability is he suffering from? He is suffering from a legal disability of being a minor. अगर मान लो कि period of limitation ये है, and suppose कि period of limitation 1 year है, because he is a minor, he will not be allowed to file a suit now. वो तभी फाइल करेगा when he becomes a major. Suppose यहां जाकर के A 18 का हो जाता है, अब यहां से उसे 1 year का टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, and this will be the prescribed period. याद रखना, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? जो भी शेड्यूल में सेकंड कॉलम में दिया हुआ है, दैट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और जो भी एग्जेम्पशन के बाद, एक्सेप्शन के बाद जो भी कैलकुलेट करके टाइम पीरियड मिलता है उसे हम लोग प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं। ठीक है, और याद रखना कि जब भी माइनर की माइनॉरिटी सीज हो जाती है, उसे उतना ही टाइम पीरियड मिल जाता है जितना कि उसे मिलना चाहिए। ऑल्दो दिस इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 8 जो कहता है कि 3 ईयर से ज्यादा का टाइम आपको नहीं मिलेगा, बट स्टिल जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है वहां पर ये फिट है। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट पार्ट कि टाइम पीरियड कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं था। अगर हम लोग बात करें सेक्शन 12 की, देखो क्या होगा यहां पर। सपोज कि डिक्री पास थी। ठीक है, अब लेट से कि डिक्री पास थी एंड दिस इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि अपील्स के लिए कितना टाइम दिया गया है, डेज में दिया गया। चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं 30 डेज का। ठीक है, अगर मान लो कि 10 डेज निकल गए थे और यहां पर उसने एप्लीकेशन फाइल की फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी, एप्लीकेशन फॉर कॉपी ऑफ डिक्री, और यहां पर मान लो 10 डेज के बाद कॉपी रिसीव्ड। ठीक है, और अभी उसके पास कितने बचे हुए? 10 डेज और बचे हुए हैं। ठीक है, सो सेक्शन 12 कहता है कि जितना भी टाइम पीरियड उसने स्पेंड किया है टू ऑब्टेन द कॉपी ऑफ द डिक्री, ये वाला टाइम पीरियड जो है, जो रेड पार्ट पे कर रहा हूं, ठीक है, दिस टाइम पीरियड उसे ये का पूरा टाइम पीरियड जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूडेड। और एक्सक्लूड का मतलब होगा कि वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में जाकर के वो ऐड हो जाता है, एडेड। ठीक है, सो यहां पर जो 10 डेज का उसे एक्स्ट्रा, वो सॉरी 10 डेज उसके गए हैं, वो 10 डेज उसे एक्चुअली यहां जाकर के मिल जाते हैं, एंड दिस विल बी नोन एज द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जो एक्सेप्शन मिलने के बाद टाइम पीरियड मिलता है उसे हम लोग प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कहते हैं। ठीक है, so this is just to give you a very basic understanding of Limitation Act of 1963। तो याद रखना इसके तीनों उसको बेसिक्स को याद रखना, और याद रखना कि ये सूट्स, अपील्स और एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है। और याद रखना कि शेड्यूल में पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो दिया हुआ है वो सेकंड कॉलम में होता है। जो एग्जेम्पशन के बाद टाइम पीरियड आता है कैलकुलेट करने के बाद उसे हम लोग प्रेस्क्राइब पीरियड कहते हैं। ठीक है, और याद रखना कि सेक्शन 6 to 24 को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं। 6 to 11 को एक्सेप्शंस कहेंगे और 12 to 24 को एग्जेम्पशंस कहते हैं। एक्सेप्शंस में क्या होता है, टाइम पीरियड कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, जैसे यहां पर बिकॉज इट वाज अ माइनर, टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ ही नहीं। स्टार्ट कब होगा, जब एक की माइनॉरिटी सी हो जाएगी। और दूसरा है हमारा एग्जेम्पशंस 12 to 24 में, जहां पर कि टाइम पीरियड स्टार्ट तो होता है बट बीच में कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से टाइम पीरियड रुक जाता है और वो बाद में रिज्यूम हो जाता है। इसीलिए यहां पर देखो, जैसे टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था, बीच में कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से टाइम पीरियड रुक जाता है और वो टाइम पीरियड फिर से रिज्यूम हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। थैंक यू एवरीवन।